Very nice and cozy good morning. You all are requested, please mute your mics and please turn off your cameras. You all are requested, our learned teachers, Good morning, you all are sir. requested, please put your mic off and turn off your cameras too. When there is a session of questionnaires, you will be allowed to raise your questions. Meanwhile, please turn off your mics and cameras. Again, we are going to start the training session. As you are aware about the training session is going to be conducted on the topic decision making skill on among the adolescents. So let's start the session. I am going to share my screen. So please go through the screen and start the discussion. Screen share Just hold on. A number of participants has been joined. सर हाईलाइटेड नहीं हो रहा है स्क्रीन से Good morning, sir. यहाँ चारों क्लास है ये वो पांच को In general, children belongs to age group 10 to 19 have been regarded as a adolescence. This is a very crucial period of our life. This is the period when a number of changes occurred biologically also and physically also. This biological and physical change have been interacted with our day-to-day environment. These children, when interacted with their day-to-day environment with this kind of changes, then a crucial issue has started in their own mindset, and that is the major issues, and that we are going to discuss. So now we are going to start the session with sharing our PowerPoint presentation. So now you are able to see the screen.
And you are seeing that the topic decision making skill in adolescence about describing describing the meaning of adolescence. And next one that we have to discuss, what are the topics that we are going to discuss in this particular session, what will be the objective. The first one is to identify various ways of making decisions by adolescents and to examine their results, to learn about effective decision making and the consequences of choices, to practice making good decisions, to practice predicting consequences, and at last we will discuss how we can train this age group children. Especially being a teacher, it is our paramount responsibility to guide the students. This is the area, this is the period where we have to guide them. A teacher over here are imparting the knowledge, rather than a teacher must play a role of counselor or also providing his guidance whenever it required. Next one, the last thing that we are going to discuss is to apply decision making skill in adolescents using IBEAR. It is a technique. It is a kind of practice that we need to inculcate among the students. Next one, outline of the session, understanding adolescent learners at the secondary stage, to know about life skill. Actually, this decision making skill lies in the category of life skills. There are number of life skills are there, and decision making skill is one of the important life skill. Next one, to identify various ways of making decisions by adolescents and to examine their results, and role of peers. It is very much important. We have to keep these factors, how these are affecting the decisions of this particular age group children. Next slide. Understanding adolescents. Broadly, they have been categorized are adolescents. इसको हम लोग कई बार तरुणावस्था कहते हैं. Going through a period of transition from childhood to adulthood, biologically marked and socially marked by increasing emancipation from parental control. The developmental spurts they experience include significant biological changes which trigger rapid changes in body mass and size. Understanding of abstract and complex thinking, social congeners, which marks significant peer relationships, identity crisis, and other issues. It is very much important. This is the age group where children start thinking, own understanding. They were trying to establish their own identity, their own command. They are trying to make their independent decisions. They always wish to have the command to make their own decisions. Next slide. During this time, they also experience, or rather enjoy, attraction toward others and become interested in forming romantic and relationship with others. It is very much day-to-day issues that we are facing in our schools. This particular point that we have to remember, during this time they also experience or rather enjoy attraction towards others and become interested in forming romantic and relationship with others. ये हमारे और आपके डे टू डे एक्सपीरियंस हैं जो हम लोग हमेशा महसूस करते हैं. ये वो पीरियड है जब हम आमतौर पे अपने क्लासरूम में इस प्रकार की चीजों में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट पाते हैं. एक अट्रैक्शन अलग अलग जेंडर ग्रुप्स के बीच में, और ये एक इंपॉर्टेंट इश्यूज होती है और जिससे हर
टीचर्स को कहीं ना कहीं गुजरना पड़ता है और उसे इस प्रकार के अपने क्लास में बच्चों के इश्यूज को सॉल्व करने पड़ते हैं. These changes give rise to a variety of social and emotional changes which directly or indirectly have an impact of their learning. ये कहीं ना कहीं इन बच्चों के लर्निंग को भी अफेक्ट करती है. तो ये एक बहुत क्रूशियल पीरियड है जहां पे हमें ध्यान रखना है कि हाउ टू जस्ट ट्रेन देम टू मेक गुड डिसीजंस. और ओवर हियर वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि अगर इस एज ग्रुप में वी ऑलवेज गिव कमांड, अगर हम बार बार उनके ऊपर एक आदेश Sir, your voice is not coming. or rather enjoy interested in forming romantic and relationship with others. It means this is the period where most of the having the attraction towards the opposite gender groups, and this is a very common issue. And over here we have to deal these issues with great cautious. Next one, these changes give rise to a variety of social and emotional changes which directly or indirectly have impact. Along with facing challenges of coping with this emotional concern, the other changes they face involve the pressure of studies and examinations, choosing and preparing for the right career, peer adjustment and learning skill like resilience, etc. As a teacher, it is such physical, social, emotional and other changes related to this particular age group. Next slide. The need of adolescents are different from earlier development stages. The dramatic changes in themselves may make them susceptible for external influences. The internal changes, along with the would make them susceptible to various conflicts within themselves and with the environment. देखिए ये वो पीरियड है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए वो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो चीजों को समझे. और ये कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को हम तक शेयर भी नहीं कर पाते हैं, वो खुद में उलझे रहते हैं. ये एक बहुत ही क्रूशियल इशू है. करना चाहिए, उन्हें क्या समझाना चाहिए, कैसे वो कूप अप कर सके, सही डिसीजन ले सके, यही हमें आज के सेशन में जानना है. Along with the emotional concern related to physical changes, adolescents are also under constant pressure to meet. It is really very important that they are provided with a safe and assuring environment where they can freely express their needs, fears, desire and hopes. Next slide. This is one of the important statements. If you go through, you will realize that yes, we are doing the same thing. We are guilty of many errors and many faults, but our worst crime is just abandoning the children, neglecting the foundation of life. Many of the things we need can wait. The children cannot. Right now, being formed, his blood is being made and his senses are being developed to him. We cannot answer tomorrow, his name is today. Means these age group are having a number of problems. This is the growing age. It is the juncture between the childhood to adulthood. तो ये वो पीरियड है जहां पे हमें अपने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है. कि आज को अगर हम इग्नोर करते, आज उनकी समस्याओं को हम इग्नोर करते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं, उनको गाइड नहीं करते हैं, it will be a. Next slide please. These are the list of some important core life skills. As you can see, self-awareness, empathy, critical thinking, creative thinking, decision making, problem solving, effective communication,
interpersonal relationship, coping with stress, and coping with emotions. These are 10 core life skills. Number of other life skills can be also added, and it may be in your mind. You might be feeling some core life skills, trying to concise this life skill into these 10 major categories. So now you can able to see decision making is one of the important life. This particular decision making skill. As you can see, what is the meaning of decision making skill? The process of assessing an issue by considering all possible available options and effects. Means in different circumstances how children are making decisions. और ये केवल बच्चों के बीच, we people also taking decisions according to the situations, and it is possible in a same situation different people may have their own perception, and according who will analyze which decision is right and how we can ensure that these children could make a right decision, a good decision that could help them to make a bright future. Next slide please. Decision making रचनात्मक तरीके से किसी चीज को इस प्रकार से समझने की जरूरत है, डिसीजन उस चीज में निर्णय लेने की क्षमता की अभिवृद्धि करने की जरूरत है ताकि एक सही निर्णय हो सके जो कहीं ना कहीं उनके अपने व्यवहार, विचार, उनके शैक्षणिक सुधारों में वो मदद कर सके. तो decision making help us to deal constructively with decisions about our lives. This can have consequences for health. It can teach people how to actively make decisions about their actions in relation to healthy assessment of different options and what effects these different decisions are likely to have. मतलब एक ही उसके क्या निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है और कैसे आप चुनोगे कि ये एक सही डिसीजन है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इमोशनल एंड सोशल चेंजेस. देखिए, I was started the topic with such kind of changes. ये जो एज ग्रुप है ये वो एज ग्रुप है जिसमें हमारे बच्चे बहुत प्रकार की चेंजेस से गुजरते हैं. मैं बार बार इस चीज को कहूंगा कि इस सेशन को समझने की आवश्यकता हमें इसलिए है देते हैं जब हम इन बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं. वी आर सेटिंग हायर गोल्स, वी आर सेटिंग हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दीज चिल्ड्रन. We forget about own age, what the this period of time when we were in the school. तो यहाँ हमें इसी चीज को ध्यान देना है कि कैसे हम चीजों को कूप अप करें. तो देखिए इस पीरियड में there were a number of changes that we are facing and the children are also facing. You can see preoccupation with body image. अपने शरीर को लेकर के एक आप कैसे हूं, मैं सुंदर हूं, नहीं हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी आंखें कैसी हैं. स्वाभाविक भावना आती है सुंदर दिखने की प्रवृत्ति. और अगर कोई बंदा उसे उसकी बॉडी इमेज को लेकर के कोई कमेंट कर दे निगेटिव तो वो उसके अपनी थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करती है. अगर पॉजिटिव कमेंट है तो वो कहीं ना कहीं उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जाती है. और कई बार इसका उल्टा भी देखा गया है कि बच्चे इसी प्रकार की सोच से प्रवृत्त हो जाते हैं और जो उनकी लर्निंग है वो फिर अवरुद्ध होने लगती है. फैंटेसी एंड आइडियलिज्म. फैंटेसी का आशय काल्पनिक विचारों में खोना, एक नई दुनिया को बनाना. ये वो पीरियड है जब बच्चों में इमेंस एनर्जी होती है. ये वो पीरियड है जब इन बच्चों की रचनात्मक ऊर्जा अपने चरम पे होती है. तो यहाँ पे उनके दिमाग में कई विचार आते हैं, वो जीवन के सपनों को बुनते हैं और खासतौर से ये फैंटेसी होती है क्योंकि रियलिटी में वो इसको कूप अप नहीं कर पा रहे होते हैं. आदर्शवाद एक नई प्रकार की विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमें एक से समाज के निर्माण करना, अपने जीवन में कुछ इस प्रकार की चीजें करनी है जो अपने आप में एक आदर्शवादी व्यवस्था हो. लेकिन यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, अगेन इट इज most of the time is away from the reality. Mood changes, laughing loudly and happy states of mind.
at one point of time, suddenly changing into sad mood due to the some trivial matters. बच्चा हंस रहा है, अचानक अच्छे से बात कर रहा है, और कई बार क्लास में देखा कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे अचानक उनमें पहचान है. Next one, attention seeking behavior, and this last point, attention seeking behavior, always feeling as if on the stage. हमेशा इस ग्रुप के बच्चे अपने लिए अटेंशन चाहते हैं, और कई बार इसी अटेंशन के लिए वो कई बार ऐसी हरकतों में भी शामिल होते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए. जैसे क्लास में ऊंची आवाज में बात करना, हंसना, टीचर पढ़ा रहे हो तो इधर पेपर को फेंकना. ये डे टू डे इश्यूज हैं जो हम सभी टीचर फेस करते हैं. इवन ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास कुछ बच्चे ऐसे कमेंट्स भी कर देते हैं, चैटिंग में कर देते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं होती है. ये एक प्रकार की इनके अपने सोचने का तरीका होता है कि इस प्रकार से वो क्लास का, उस ग्रुप का, अपने टीचर का अटेंशन पाना चाहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देखिए, ये वो पीरियड है जब बच्चों के अंदर तमाम प्रकार की एनर्जी उनके अंदर आती है. जैसे इंक्रीज एनर्जी लेवल, नीड प्रॉपर चैनलाइजेशन, दैट मीन्स इन स्पोर्ट्स. देखिए, जो ऊर्जा है इस पीरियड में, उस ऊर्जा को चैनलाइज करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेंड करना पड़ेगा अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि ये उनकी स्किल डेवलपमेंट का पीरियड है. चेंजेस इन ड्रेस कोड, फॉलो पीयर ग्रुप्स नॉर्म्स. अब ड्रेस कोड का मतलब क्या है? उनके ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनके दो वो कपड़ा उन्हें अच्छा लगा तो वो भी चाहते हैं कि वैसी ड्रेस उनके पास भी हो. अगर किसी बच्चे की हेयर स्टाइल उन्हें अच्छी लगती है तो वो उसकी कॉपी करना चाहते हैं. पैरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में अकर. अब इस पीरियड में क्या होता है कि अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं उनकी कॉन्फ्लिक्ट होती है कई मुद्दों पे. कई बार बच्चे को आप समझाते हैं, उनके माता पिता को बुलाते हैं, माता पिता बोलते हैं सर क्या करे, ये तो हमारा बच्चा तो हमारा बात ही नहीं मानता है, हम लोग परेशान है, बहुत गुस्सा करता है, तोड़ फोड़ करने लगता है और खाना खाना बंद करता है. ये होता है इस पीरियड में, ये चीजें आती है. कैसे अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में सोचने के लिए प्रवृत्त करें. कॉन्क्रीट थिंकिंग, ऑफन कंफ्यूज एट टाइम्स, नो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस. यहां उनकी जो अपनी सोच होती है कंफ्यूज होती है, क्योंकि उन्हें सच नहीं हो पाता, बट they are having the feeling कि they are able to make correct decisions. They are grown up enough to make their independent decisions. But ऐसी बातें नहीं होती हैं. और इस पीरियड में if you are going to give any instruction, तो यहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट होगी, बच्चा डिसोबे करता है, ये कॉमन चीजें हैं. नेक्स्ट वन, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर फैमिली वैल्यूज एंड पैरेंटल कंट्रोल, नीड्स फॉर अटैचमेंट टू अ पीयर ग्रुप. ये बार बार ये पीयर ग्रुप अर्थात सहपाठियों का ग्रुप, जिस क्लास में वो रहते हैं, जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, उनका इस एज ग्रुप के बच्चों के ऊपर बहुत बहुत गंभीर प्रभाव होता है. एनीथिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, पीयर ग्रुप्स डिफाइंस बिहेवियरल कोड. यानी उनके व्यवहार को उनकी जो पीयर ग्रुप है वो डिसाइड करने लगती है. यहां पे भी रोल प्ले होता है. कई बार हम लोगों भी ने देखा है, आपने भी महसूस किया होगा कि पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं सर क्या करें, घर पे तो बच्चा अच्छा रहता है, लेकिन स्कूल में जाता है या अपने ट्यूशन में जाता है तो वहां झगड़ा कर लेता है, मारपीट कर लेता है. घर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, स्कूल में ही ये बच्चा ऐसा करता है. तो हमें ये सोचना पड़ेगा. वी हैव टू गिव सम टाइम टू थिंक व्हाई दिस चाइल्ड इज हैविंग सच काइंड ऑफ बिहेवियर within the school premises, in the classroom. Why? कहीं ना कहीं कई बार कुछ बच्चों की अपनी ग्रुप होती है, वो दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं. ये चीजें यहां पे कॉमन होती है. इस पीरियड में वो चाहते हैं स्वतंत्र रूप से निर्णय करने की बात, और सेल्फ असर्शंस एंड द एक्सप्रेशंस ऑफ पर्सनल आइडियाज. वो अपने एक्सप्रेशंस, अपनी सोच को रिफ्लेक्ट करने को पसंद करते हैं. उनके ऊपर अगर नई सोच दी जाए तो कई बार वो उसे समझते हैं उन पे दबाव बनाया जा रहा है, वो उसको रिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, रिवोल्ट करने की आदत हो जाती है, विद्रोही तेवर वो अपनाते हैं. नेक्स्ट प्लीज. कॉमन डिसीजन मेक्स. ये क्या डिसीजंस होते हैं
जो डे टू डे लाइफ में टीन्स मेक करते हैं। आपके पास एक लिस्ट है, आप उसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और हमने अपने बच्चों के बीच भी इन चीजों को देखा है। और मैं बार बार कहूंगा कि अपने उन दिनों को हम याद करें जब हम भी इस एज ग्रुप में थे, हम भी इसी प्रकार की चीज, टू वियर टू स्कूल, विद्यालय जाना है, क्या पहने। खासतौर से यूनिफॉर्म तो हम सभी बच्चे पहनते हैं, लेकिन यहां ध्यान देना पड़ता है कि यदि कोई ऐसा ओकेजन हो जिसमें स्टूडेंट्स आर अलाउड टू कम इन देयर फॉर्मल यूनिफॉर्म, तो वो घर वाली ड्रेस पहन करके आनी है, तो वो कौन सी ड्रेस पहने, यहां सिलेक्शन एक मायने रखती है। अपने आप को सबसे अलग दिखाना, सबसे खूबसूरत दिखाना, सबसे बेहतर दिखाना, इसके अंदर एक जद्दोजहद होती है। ये भी डिसीजन करना होता है, ये भी उन टू ईट फॉर लंच। इस ग्रुप में आपने देखा होगा कि बच्चे क्या खाएं, कहां खाएं, ये डिसीजन करते हैं, ये अपनी चॉइस शेयर करते हैं। विच होमवर्क टू डू फर्स्ट, लॉट ऑफ होमवर्क्स आर देयर, अगेन दे हैव टू मेक द डिसीजन। कौन सी सब्जेक्ट की होमवर्क पहले करें, मैथ्स की करें, साइंस की करें, सोशल साइंस वाले सर की करें, यही सर डांटेंगे तो पहले उनका कर लेते हैं। तो ये भी ऑन द वीकेंड्स, छुट्टियों के दिन में वो क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग। कई बार आपने देखा होगा कि आपके अपने बच्चे आपको कहते होंगे बाहर हमें लंच पे ले चलिए, ये चीजें आएंगी। व्हाट टू डू ड्यूरिंग स्टडी हॉल, व्हाट मूवीज टू सी, फिल्म देखने की बात भी, कौन सी देखे कौन सी ना देखे। मोर सीरियस डिसीजन, ये तो नॉर्मल डिसीजन थे, अब सीरियस डिसीजन देखिए। व्हाट क्लासेस यू वांट टू टेक इन हाई स्कूल, हु यू वांट टू डेट। देखिए अब ये शब्द में भी यू फील कि ये चीजें बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट इट्स अ रियलिटी। ये वो एज ग्रुप है जब अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, यहां पे बच्चों के बीच ये एक कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर इशू हो पाता है। इफ यू विल एक्सपेरिमेंट, क्लास में भी देखा होगा, अगर ठीक से जानकारी ले तो कुछ ऐसी भी घटनाएं मिलेगी जिसमें बच्चा बुरी आदतों का शिकार हो सकता है स्मोकिंग का शिकार हो सकता है वो ड्रग्स लेने लगा हो सकता है अल्कोहल ले रहा हो, इट मे बी पॉसिबल। व्हाट टाइप टू ऑफ जॉब डू यू वांट, और यहां से वो सपने बुनता है कि आने वाले कल में वो क्या करेगा, किस प्रकार की नौकरी करना वो पसंद करेगा। अगले स्लाइड को हम लोग अब देखें। अगले स्लाइड में आप ये पाएंगे कुछ रिस्की डिसीजन भी टीन इस उम्र में करते हैं। ब्रेकिंग द लॉ, अब ये लॉ ब्रेकिंग शुरुआत इसकी कहां से होती है, अपने क्लासरूम से। क्लासरूम के नॉर्म्स, स्कूल्स के नॉर्म्स को वो ब्रेक करते हैं। कई बार सोशल नॉर्म्स को वो ब्रेक करेंगे, अनुशासन के विरुद्ध जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें गंभीर अपराधों में शामिल कर देती है। अगर बुरी आदतें हो गई तो कई बार उनके अंदर पैसे की कमी है, चोरी करना, ये भी होती। लूटपाट की घटनाओं में कई बार टीन्स का नाम आता है, इस एज ग्रुप के बच्चे शामिल हो जाते हैं। यूजिंग ड्रग्स, हैविंग विश टू इन्वॉल्व इन फिजिकल रिलेशनशिप, जैसा कि बार बार मैंने कहा कि ये वो एज ग्रुप है जिसमें अपोजिट जेंडर के प्रति एक अट्रैक्शन पैदा होती है और करीब आना, और कई बार ये गंभीर परिणाम देते हैं। मिक्सिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स, ये कुछ रिस्की डिसीजंस के पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में आप हम लोग देखेंगे कि फेसिंग चैलेंज, मेजर चैलेंजेस किस रूप में हम पढ़ सकते हैं। और पहला मैनेजिंग इमोशंस, दूसरा डेवलपिंग एन आइडेंटिटी, तीसरा रेसिस्टिंग पीयर प्रेशर, एंड देन आफ्टर बिल्डिंग रिलेशनशिप and education and career. These are some major challenges. We have gone through a number of challenges, we have gone through a number of problems that teens are facing. Now those problems and challenges have been just concise way and categorized into these 5 categories. Now see, what does managing emotion sadness, happiness, fear, shame and love. Very often the emotional turmoil, ये जो एक आप ये कह सकते हो कि इसमें वो बच्चे खुद को एक किसी मूड में नहीं रख पाते हैं। क्योंकि किसलिए नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो खुद निर्णय नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग।
In meantime, they just fluctuate, their mood fluctuates. Sometimes they are talking very happily, sometimes they become very angry. Even though you have said a very simple thing to them, they become so angry. And being a father and mother, you might be realize such kind of things in our home also. We teachers are also facing such kind of situations in our classroom also. Not knowing how to make decisions and what is good and what is bad for them. They are unable to manage the emotions. Next slide, please. Developing an identity. This is a very, very crucial issue. In this particular age group, these children have having the tendency to get their identity. They recognition in the class also, in the school also, in their peer group also, in their family also, in the society also. They are having the dreams that people identify me. I could have my own identity. People know my name. देखिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. Unlearned personalities, but we are also not away from such kind of thought. आज की उम्र में भी हम ये चाहते हैं हमारी एक आइडेंटिटी हो. We are running for that. किस रास्ते बनेगी? There must be a process, a way कि जो सोसाइटी को भी हार्म न करे और हमारी एक आइडेंटिटी डेवलप हो. You can see self-awareness helps adolescents understand themselves and establish their personal identity. Lack of information and skill prevent them from effectively exploring their potential and establishing a positive image and sound career perspective. क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ कंफ्यूजन है, बच्चों के अंदर पूरी जानकारी नहीं होती है, तो वो पूरी समग्रता से अपने विषय में, अपनी आइडेंटिटी के विषय में, अपने फ्यूचर को प्लान नहीं कर पाते हैं. तो यहां वो पीरियड है कि बच्चे की कंफ्यूजन होती है. इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी पीरियड है जहां पे उन्हें building relationship. As a part of growing up, adolescents redefine their relationship with parents, peers, and members of the opposite sex. Adults have high expectations from them and do not understand their feelings. ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है. आमतौर पे हम बड़े माता पिता के रूप में, टीचर्स के रूप में हो, हम कई बार बच्चों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते और हम अपनी थॉट को, हम अपने तरीकों को उन पे थोपने की कोशिश करते हैं. जबकि ये वो पीरियड है व्हेन चिल्ड्रंस आर लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंस. दे आर ट्राइंग टू मोर एंड मोर ऑटोनॉमी टू मेक डिसीजंस. और यही adolescents needs social skills for building positive and healthy relationships with others, including peer of opposite sex. They need to define boundaries of every relationship. Peer group, फिर से मैं कह रहा हूं, ये बच्चों का अपना समूह होगा क्लासरूम में, और बच्चों के अपने समूह में आपने देखा होगा कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कुछ फ्रेंड हैं, और कुछ बच्चों के बीच में ग्रुपिंग हो जाती है. तो ये दो ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट में वर्क करते हैं. They are not having a good relationship, mutual relationship with them, and you are getting a number of complaints again and again. One group is coming up with the complaint of another group. So this is a part and parcel of this particular age. ये हम पे सावधान होना है कि कैसे हम इन बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश कर सके. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दोस्ती, उनकी मित्रता, फ्रेंडशिप बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है. आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप अपने बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट को चेंज करते हो, बच्चे विरोध करते हैं. उनके पेरेंट्स तक आते हैं, पेरेंट्स से बात करेंगे तो पेरेंट्स बताएंगे सर ये स्कूल नहीं आना चाहती है, नहीं आना चाहता है, इसको इसका सेक्शन बदल दिया गया, इनका सिटिंग अरेंजमेंट बदल दिया गया, सर वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है या पा रहा है. ये एक मेजर इश्यूज हो जाती है. एंड दैट जस्ट स्पॉइल द एटमोस्फियर ऑफ द क्लास. कई बार तो रोना धोना भी हो जाता है. ये क्या है?
This is called peer pressure. Peer relationships suddenly become important where they learn important social skills such as empathy, cooperation, collaboration, and so on. During this time, these relationships undergo a major transformation from activity based to more stable, effective relationship. कोशिश करते हैं एक अपनी मित्रता में, अपने रिलेशनशिप में एक अस्थायित्व की कोशिश करते हैं कि वो कैसे एक बेहतर They are highly influenced by the support they receive from their peer. उनके मित्र जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके हेयर स्टाइल को लेकर के ये सारी काउंट करती है. और द फीलिंग ऑफ बीइंग जस्ट बाय देम. They might feel good and satisfied with how they look if they receive positive comments from peers and family members about their body or find it see in the media. अब ये भी गौर करेंगे, nowadays we have just facing this problem also कि children are having a very a kind of इमेजिन करते हैं अपनी बॉडी की कि हमें ऐसे शरीर चाहिए, ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, ऐसे रंग रूप चाहिए, ऐसे हमें तैयार होना है. ये चीजें सबसे ज्यादा गाइडेड होती है पीयर प्रेशर के साथ, मीडिया के साथ. नेक्स्ट वन, these bodies these boosters their confidence. On the other hand, those students who receive negative comments from peer and family members about their body or have a body that is different from the ideal body that image, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, न तो वो टाइगर श्रॉफ की तरह दिख रहा है, नहीं तो वो आलिया भट्ट की तरह दिख रही है. तो बच्चों के अंदर एक प्रकार की सोच पैदा होती है कि मुझ में ये कमी है और वो उसी के साथ घुटने लगते हैं. उनकी सोच बाधित होती है, उनकी पढ़ाई बाधित होती है. दिस कॉजेज लो सेल्फ स्टीम. आत्मविश्वास घट जाता है. लो कॉन्फिडेंस. As also evident for clinical data, a healthy body image is important to ensure a good mindset. Important to ensure the emotional well-being of adolescents. तो ये एक important phase है. उनके ऊपर हमारी की गई पॉजिटिव और नेगेटिव रिमार्क्स एज अ टीचर, एज अ फैमिली मेंबर, उनकी सोच को, उनकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है. इट मे बी कि we have not analyzed कि what will happen after its own impact. नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटी सी वीडियो है, उसमें रोल प्ले किया गया है. दो ये टीचर्स ही हैं, उन्होंने रोल प्ले किया है, आप उसे देखें. क्लिक कीजिए. मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूं. I'm already here for a reason. Of late, I have been noticing you are not participating in class. You are sitting at the back, and you don't look yourself. Is everything okay? Is there anything you want to talk about? Yes, ma'am. Ma'am, I am a new admission in the class. And there are two girls in the class, Radhika and Madhu. Yes. They constantly make fun of me. They say I am very overweight. I look fat. And ma'am, even in front of the class, they made fun of me. Anything else? Yes, ma'am.
don't score good marks. I'm sad. I really feel bad. Even at the home, people call me. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपने अभी देखा कि ये एक रोल प्ले के रूप में कि कैसे दो एक स्टूडेंट अपनी फीलिंग को शेयर कर रही हैं अपने टीचर के साथ, कि कैसे वो निगेटिव कमेंट्स को फेस कर रही है और धीरे धीरे वो खुद भी लगने लगा कि वो मोटी है, वो अच्छी नहीं दिखती है। दिस इज द वेरी सीरियस इंपैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ दैट स्टूडेंट। तो वी हैव टू बी कॉशियस कि हमारे क्लास में इस प्रकार के निगेटिव कमेंट्स नहीं पड़े। एजुकेशन और कैरियर की हमारी एक्सपेक्टेशंस उसमें आती रहती हैं कि हाँ हमारा बच्चा ऐसे करे, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। बच्चा पैदा होता है और हम उस पर दबाव बनाते हैं, समय के साथ हमारे दबाव बढ़ता जाता है। भले बच्चे में काबिलियत है नहीं है, उसकी पोटेंशियल क्या है, बिना जाने हुए हम उसके from the fast changing world have left adolescents with many unanswered questions. The weekend gap is communication between adolescents and parents is a matter of great concern। और ये रिलेटेड एजुकेशन के साथ भी होती है, कैरियर के साथ भी होती है। तो यहाँ पे हमें देखना है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आने वाले जीवन में वो किस प्रकार से आगे बढ़े, उनकी तैयारी किस प्रकार से हो, कि उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है, वो कैरियर क्या बनाना चाहते हैं, कैसे उसको वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है हाउ वी कैन inculcate decision making skill among the students. This is called IBEAR decision making model. IBEAR stands for International Business Education and Research। मार्शल स्कूल ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से एसोसिएटेड है और ये वही डेवलप्ड है। एक एक वर्ड IBEAR having its own meaning and a kind of tools कि कैसे हम बच्चों को गुड डिसीजन के लिए इनकलकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, I stands for आइडेंटिटी ऑफ सिचुएशन, B फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग अल्टरनेट सॉल्यूशन चॉइसेस। मतलब सबसे पहले सिचुएशन को पहचानना कि सिचुएशन क्या है, समस्या क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इस सिचुएशन को हम कैसे डील कर सकते हैं, क्या डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट, इवैल्यूएट चॉइस, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ईच वेट्स प्रोस एंड कॉन्स। जो डिसीजन हम लेंगे उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। ए, एक्ट ऑन योर डिसीजन, और उसके बाद हम एक्ट करने को बच्चों को प्रेरित करें। देन आफ्टर री इवैल्यूएट, डिड यू मेक अ गुड चॉइस, वेयर यू हैप्पी विथ इट। मतलब कि जो आपने एक्ट किया है, हमारी जो डिसीजन है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टेप 1 IBER का, आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन आर वी इन। अब एग्जांपल इसका देख सकते हैं। यू हैव बीन बीइंग बुलीड एट स्कूल फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह से स्कूल में आपके ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं, आपको चिढ़ाया जा रहा है। सेकेंड, यू वर प्लानिंग टू स्टे साइंस हेल्प बट योर फ्रेंड जस्ट टोल्ड यू दे आर गोइंग टू द सॉकर गेम इंस्टेड। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप स्कूल के बाद रुक करके एक्स्ट्रा क्लास करना चाहते हैं, लेकिन आपके दोस्त आपको घींच करके ले जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, या मैच देखने के लिए, या क्रिकेट खेलने के लिए, या पिज्जा खाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ब्रेनस्टॉर्मिंग, पॉसिबल चॉइस क्या हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू कैन डील विद द सिचुएशन और प्रॉब्लम। पहला वन हो सकता है कि टेल अ ट्रस्टेड एडल्ट अबाउट व्हाट हैज बीन हैपनिंग टू यू। पेरेंट, टीचर या प्रिंसिपल को आप बताएं कि आपके साथ क्या समस्या आ रही है स्कूल के अंदर, अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच में। दूसरा, स्टे आफ्टर स्कूल एनीवे, और दूसरा ये हो सकता है कि इसके विषय में हम चर्चा ना करें, और एनीवे फॉर साइंस एंड सजेस्ट मीटिंग देम एट द सॉकर गेम लेटर। हम अपने दोस्तों को बताएं, भाई देखो मुझे अभी क्लास करना है, इसके बाद हम लोग गेम खेलने चलेंगे। ये 2 अल्टरनेटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इवैल्यूएशन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ समथिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग कम्स इवैल्यूएटिंग व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। अगर मैं क्लास करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, अपने पेरेंट्स को बताऊंगा तो क्या होगा, उसका क्या नुकसान होगा, क्या मैं अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करूंगा तो क्लास के जो बच्चे जिनके खिलाफ कंप्लेन करूंगा वो फिर मुझे चिढ़ाएंगे, वो कहीं मुझे बाहर मारेंगे तो नहीं, क्या क्या हो सकता है। ऑल डिसीजंस हैव सम लेवल ऑफ रिस्क एंड टेकिंग रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। यहाँ हर डिसीजन के पीछे एक रिस्क है। जैसे
अगर वो अपने प्रिंसिपल को बताते हैं, टीचर को बताते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, और जिन बच्चों ने उनको बुलीड किया था उसको वो डांटते हैं, तो डेफिनेटली दे हैव their thought in the mind कि these students may harm them, may challenge them. कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इनको बाहर धमकी दे. नेक्स्ट, however, एक्ट को देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एक्ट को देखते हैं. एक्ट क्या है? एक्ट 4, स्टेप 4, डिसाइड what you are going to do and take action. But first, ask yourself the following just before you act on it. यानी जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो, एक्ट करोगे, उसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कंसीडर दिस बिफोर एक्टिंग. क्या यह डिसीजन मेरे स्वास्थ्य के लिए सही होगा? एथिकल, क्या यह डिसीजन सेफ है? क्या मेरे डिसीजन से दूसरों को कोई नुकसान तो नहीं होगा? तीसरा, लीगल, क्या ये हमारी उम्र में ये करना सही है? क्या ये कानून सम्मत है? और एम, पेरेंट्स, वुड योर पेरेंट्स फैमिली अप्रूव? या आपका जो डिसीजन है क्या इसको आपके पेरेंट्स स्वीकार करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे, आपके टीचर खड़े होंगे? ये उनके अंदर भावना पैदा करनी होगी. एंड इफ द आंसर इज यस, यदि इसका आंसर बच्चों के पास यस है तो हमें अलाउ करना चाहिए कि वो उस डिसीजन को करें. अदरवाइज उन्हें फिर से अपने डिसीजन को सोचना पड़ेगा. You had as a result of your own choice. इस सारे डिसीजन के बाद आप खुद को देखें. वेरी डिसीजन के बाद टेक्निक को फॉलो करें अपने जीवन में. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Different methods that can be used to enhance the decision making skill in students. Class discussions, brainstorming, demonstration and guided practice. टीचर्स का रोल यहाँ पे बेहतरीन होता है कि कैसे वो बच्चों के अंदर अलग अलग समस्याओं को लेकर के एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से उनको साबित करे. हो सकता है कि वो वीडियो के द्वारा, रोल प्ले के द्वारा, ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज के द्वारा, एजुकेशनल गेम्स के द्वारा, केस स्टडीज बच्चों के सामने डिस्कस करके, स्टोरी टेलिंग, ज्ञानवर्धक और मोरल वैल्यूज वाली स्टोरी करा करके, डिबेट्स करा करके बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करें. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एक कहानी है 30 को की, प्यासा कौवा, जिसके विषय में हम सभी लोग जानते हैं. इस कौवे के विषय में, ये कौवे के पास एक सिचुएशन थी, प्यासा था, इसके पास एक, उसने देखा कि एक मिट्टी का घर है जिसके बॉटम में पानी है, कुछ पत्थर थे. अब कैसे इस कौवे ने डिसीजन लिया, ये उसका एक एग्जांपल है डिसीजन मेकिंग स्किल का. इसमें कई प्रकार के डिसीजन आपको देखने को मिलेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सेल्फ अवेयरनेस में क्रो ने क्या किया? क्रो रियलाइज दैट शी इज थर्स्टी. सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर रहा है सेल्फ अवेयरनेस में. एंड शी हैज टू डू समथिंग टू फाइंड वाटर. पानी की तलाश में उसे कुछ करना पड़ेगा. डिसीजन मेकिंग, she decided to start looking for water. पानी चाहिए. Next, critical thinking, ability to identify the problem. Critical thinking means ability to identify problems. She found that the water level is low and she cannot reach it, cannot topple it or break it. अब उससे निकाल नहीं सकते हैं, कैसे निकालें? That creative thinking comes. Use the pebbles, immediately available resources creatively. आसपास में जो रिसोर्सेस था उसने उसका इस्तेमाल किया. This is a part of the creative thinking. It is also next is problem solving. Found a solution to her problem by thinking creativity. यानी उसने क्रिटिकली सोचा और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कि एक बहेलिये ने दाना डाला, कबूतर उसमें फंस गए और कैसे वो कबूतर मिल करके उस जाल को लेकर के उड़ जाते हैं. तो अब इसमें देखिए, इसमें इस स्टोरी में व्हाट काइंड, इस पर्टिकुलर स्टोरी, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. लाइफ स्किल यूज बाय कैरेक्टर्स. सेल्फ अवेयरनेस, द pigeons knew that they were in trouble and need to find a way out of the net. Critical thinking for problem identification. The young pigeon identified that they were
इंडिविजुअली, एक एक कबूतर जाल को उड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो संभव नहीं हो रहा था. Effective communication. The young pigeon assertively communicated his suggestion for flying together. फिर उसने डिसीजन लिया, सलाह दी कि हम लोग मिलके काम करें. Decision making. They decided to fly as a group. Creative thinking for problem solving. Identify a creative thinking by the hunter. Spreading grains under the net to catch the pigeon. यहां देखिए उस जो बहेलिया था, जो हंटर था, उसकी भी थॉट देखिए कि वो अगर दाने बिखेरेगा, चारा डालेगा तो पक्षी फंसेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देखिए, some tips for the teachers and parents. Listen to the child attentively. Be empathic in your attitude. Admire, vigilant. Don't accept anything. Show your concern while telling them about their wrongdoing. Show respect towards their feelings and views. Understand that रीच अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ये कुछ टिप्स है जो टीचर्स और पेरेंट्स अपना करके हम बच्चों को समझा सकते हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा. ये अंत रहा है, अटेंडेंस लिस्ट शेयर की गई है और पुनः मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि यू ऑल हैव जस्ट गिवन योर प्रीशियस टाइम. यू हैव लिसन्ड मी पेशेंटली and I'm very much thankful to GT Mother International School, its management, and also the Madam Principal who has guided me able to present this discussion in front of you. Any question? Attendance link for attendance has been already shared in the group. You all are requested, please fill the attendance form properly. I'm waiting for the question. अटेंडेंस लिंक ओपन नहीं हो रहा है सर. Attendance link is not working. Okay, sir. Sorry for inconvenience. I am working for it. Our team members are also working for it, and there will be no issue. Just have a patience. Give me one more minute. The precious minute is required. Now it's working, sir. कहाँ खुल रहा है? Please see whether it is working. या क्या? Sir, it is working. अभी के. Is it working, sir? Sir, it is working. वर्किंग. कहाँ खुल रहा है? Feedback. So, and hope, and again I am thanking to all of you. Thank you, everyone.